صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، یہ اللہ کا ہم تمام پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے لطف و کرم سے اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں اپنے دربار میں برداشت کر لے اور ہمیں بیٹھنے کی توفیق دے اور یہاں بٹھائے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی ہماری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشاء اور ارادے کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر بھی کوئی آ نہیں سکتا۔ جب ہم یہاں آئے ہیں تو اس پر ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی تھی اسی لیے آ سکے۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، لیکن اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، اس کی ہمارے اندر لیاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم مسجد میں آنے پر نہ خوش ہوتے ہیں، نہ مسجد میں نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ تو آنے کی ہمیں ضرورت محسوس ہونا چاہیے۔ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرورت محسوس ہوگی۔ کوئی چیز ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے نہیں آتی، محنت کرنے سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، جس طرح کے اسباب انسان اختیار کرے گا، اللہ کی مرضی اور مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو کر وہ کام پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ بزرگان محترم، مجھے کوئی لمبی بات کرنے کی عادت بھی نہیں ہے اور میں ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ بات پوری ہو جائے، بھلے 20 منٹ میں ہو جائے، 22 منٹ میں بات میں سمجھا سکوں، 25 منٹ میں بات سمجھا سکوں۔ یہی لگ بھگ اتنے ہی کا وقت ہے کہ میں اپنی ایک دو باتیں جو آپ کے لیے کچھ تبدیلی کا ذریعہ بن جائیں اور آپ کے دل کو جھنجھوڑنے والی ہوں اور آپ کے جو خیالات میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکے، ایسی کچھ باتیں آپ کے ذہن اور فہم سے قریب ہو کر بہت موٹے اور محسوس انداز میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا مقصد آپ حضرات کی معلومات میں کوئی خاصا اضافہ کرنا نہیں ہے، لیکن جو ہمارے اندر جو ہماری حالت ہے، اس حالت میں ایک قابل لحاظ تبدیلی آ جائے، اور تبدیلی آنے کے لیے کیا بولنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں کچھ سننے کے لیے جمع نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو یہاں بٹھا لیا جائے اور کچھ نہ کہا جائے اور کہا جائے کہ میں بھی یہاں بیٹھا رہوں گا، آپ بھی یہاں بیٹھے رہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کہہ بھی دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کبھی کتاب پڑھ لی جائے، لیکن مقصد معلومات میں اضافے کا نہیں ہے کہ کوئی کتاب سمجھا دی جائے گی یا معلومات میں اضافہ کیا جائے گا، بلکہ اصل فکر اس بات کی ہے کہ ہماری جو صورتحال ہے، ہم جس انداز میں جی رہے ہیں، اس زندگی پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر لیا جائے کہ اگر دنیا سے جانا ہوا تو پھر برزخ میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اگر آخری وقت آ گیا تو ہم کو کیا مومنانہ انداز میں لے جایا جائے گا یا مجرمانہ طور پر خدا کے پاس لے جایا جائے گا، اس بات کی فکر کرنا ہے اور
इस फिक्र को बरूए कार लाते हुए जो काम हमारे लिए करने का है उस काम को इख्तियार करना है, इसके लिए हम जमा हुए। मैं आप हजरात से साफ साफ कहना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, क्या हमारा इंसानी जिस्म खाए बगैर पिए बगैर किसी ऐसी जगह पर जहां इसे खाना ना मिले पानी ना मिले रह सकता है? इसकी बका मुमकिन नहीं है। किसी कमरे में बंद कर दीजिए, 15 दिन महीने तक खाना ना दीजिए, फिर बाद में जाकर देखेंगे तो जिस्म नहीं हड्डियां मिलेंगी। क्यों? उसकी बका का दारो मदार है खाने पर, पीने पर, हवा पर, लिबास पर, जूते पर, दवाइयों पर। उसे उसके जिस्म के लिए ग़िज़ाएं भी चाहिए और दवाइयां, बीमार पड़े तो दवाइयां भी चाहिए। ग़िज़ा ना मिले तो फिर कहीं का ना रहे दुनिया के अंदर, दवा ना मिले तो फिर कहीं का ना रहे। लेकिन इन ग़िज़ाओं का और इन दवाओं का इंतज़ाम हमारे लिए सोच समझ कर इस बात का फैसला कीजिए, इन चीज़ों का इंतज़ाम किसने किया हमारे लिए? हमारे लिए इन चीज़ों का इंतज़ाम हमारे लिए, बल्कि सारे हैवानात के लिए, जिन्नात के लिए, परिंदों के लिए, चरिंदों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ग़िज़ाओं का इंतज़ाम फरमाया। कीड़ों को उनकी ग़िज़ा पहुंच रही है, दरिंदों को उनकी ग़िज़ा पहुंच रही है, समंदर में उनकी ग़िज़ा आबी जानवरों को पहुंच रही है, हवाओं में उड़ने वालों को ग़िज़ा पहुंच रही है, सारे दुनिया के इंसानों को ग़िज़ाएं पहुंच रही है। ये अल्लाह तबारक व तआला इन सब के लिए ग़िज़ाओं का इंतज़ाम फरमाता है, और जिसकी जो ग़िज़ा है वो रोज़ाना पेट भर कर खा लेता है। परिंदे को परिंदे की ग़िज़ा, दरिंदे को दरिंदे की ग़िज़ा, इंसान को इंसान की ग़िज़ा अल्लाह ताला दे रहे हैं। बारिश कौन बरसा रहा है? अल्लाह ताला बरसाते हैं, तभी ज़मीन जिंदा होती है। ज़मीन से उगाते कौन है? सब्जियों को, फलों को अल्लाह ताला उगाते हैं, तभी वो सारे लोगों की ग़िज़ाएं बनती है। ज़मीन से जड़ी बूटियों को कौन उगा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला उगा रहा है। उसी को लेकर अतिब्बा दवाइयां बनाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की चीजों को दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ चीजों को ग़िज़ाओं के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन सब को कौन पैदा कर रहा है, ये हम सारे मोमिनीन जानते हैं। इसका जवाब हमारे पास मौजूद है। इसका जवाब हम सबको हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखला दिया है और बतला दिया है, और वो है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। ये बात हमको हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है कि देखो वो अल्लाह है जो आसमानों से बारिश बरसाता है, उसके अलावा कोई नहीं है बरसाने वाला। वो अल्लाह है जो रात को लाता है, वो अल्लाह है जो दिन को लाता है। अल्लाह ही की मदद से हम सोते हैं, अल्लाह ही की मदद से हम जागते हैं। अल्लाह की मदद होती है हम इस्तिंजा को जाते हैं, अल्लाह की मदद होती है तो हम इस्तिंजा खाने से बाहर आते हैं। अगर अल्लाह की मदद ना हो तो हमको बाहर लोग लेकर आएंगे। हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं, बल्कि मोहताज थे, हम अल्लाह के मोहताज थे। सच्चाई बयान करता हूं, जब हम दुनिया में आए थे हम लेटे हुए थे, बैठ नहीं सकते थे, ना हमको कोई बिठा सकता था। अल्लाह ने हमारे अंदर बैठने की सलाहियत पैदा की तो बच्चा बैठ सका। हम ठहर नहीं सकते थे, दुनिया में सिर्फ बैठकर काम नहीं चलता, खड़े होता है, लेकिन अल्लाह ने खड़ा किया था। सिर्फ खड़े रहने से काम नहीं चलता, चलना अल्लाह ने सिखाया था तो बच्चा चल पाया था। दांत अल्लाह ने निकलवाए थे तो दांत निकले थे। अल्लाह ने उसको बढ़ा के जिस्म को तो वो बच्चा बढ़ गया था और जवान हुआ था। अगर अल्लाह उसे ना बनाते तो ना करता। ये तमहीदी बातें हैं, ये बातें हम समझ गए।
اور سمجھ میں آ رہی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ بیٹھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے, بچے کا کھڑا ہونا ایک نعمت ہے, اللہ کی مدد ہے اور شکر کی بات ہے. بچہ جب چلتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے, ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. جب جوان ہوتا ہے تو یہ بھی خوشی کی بات ہے, غذائیں ملتی ہیں تو یہ بھی خوشی کی بات ہے, پھل مل رہے ہیں, غذائیں مل رہی ہیں, دوائیاں مل رہی ہیں, رہنے کے لیے عالی شان مکانات مل رہے ہیں, ہے گدے سواریاں مل رہے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس سے انسان فائدہ ہے اور مگن رہتا ہے, خوش رہتا ہے. اگر یہ نہ ملے تو پریشان ہو جائے, اسے پہننے چپل نہ ملے, پاؤں کپڑے نہ ملے, بھوک ہے غذا نہ ملے, تھکن ہے بستر نہ ملے, جوانی ہے شادی نہ ہو, شادی ہو گئی ہے بچے نہ ہو, تو پھر آدمی کی پریشانی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. اسے معلوم ہے دعائیں کراتا پھرے گا, کہے گا کہ صحت کے لیے دعا کیجئے, کاروبار دعا کیجئے, اور اولاد کے لیے دعا کیجئے, اور فلاں مجبوری کے لیے دعا کیجئے, پانی کے لیے دعا کیجئے, یا گھر کے لیے فلاں پریشانیاں دعا کیجئے, محلے دعا کیجئے, دعائیں کرائے گا. اب ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس محفل کا اصل عنوان ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو جانتے ہیں وہ یہی نعمتیں ہیں, ہم لوگ جو جانتے ہیں وہ یہی مصیبتیں ہیں جسے ہم جانتے ہیں. مصیبتوں کا میں نے تذکرہ کر دیا, دنیا میں کیسی کیسی مصیبتیں ہوتی ہیں. اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے, ایسے افلاس سے اور ایسی تندرستیوں سے بچائے. اور میں نے تذکرہ کر دیا کہ نعمتیں کیسی کیسی ہوتی ہیں. صحت نعمت, جوانی نعمت, دولت نعمت, دکانیں اور مکانات نعمت, بیوی نعمت, بچے نعمت, بستر نعمت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. لیکن یہ باتیں صرف ہم جانتے ہیں نعمتوں کو, یہ ہم جانتے ہیں. ہم جیسے سیدھے سادے لوگ ان کو مصیبتیں اور نعمتیں سمجھتے ہیں. ارے ایک مصیبت ہوتی ہے حقیقی مصیبت جسے ہم نہیں جانتے, ایک ہوتی ہے حقیقی نعمت اور حقیقی راحت جسے ہم نہیں جانتے. اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ جن نعمتوں کا تذکرہ میں نے کیا ہے, ارے وہ تو جانوروں کو بھی حاصل ہے. ہم سنتے ہیں جانور بھی سنتا ہے, ہم جوان ہوتے ہیں جانور بھی جوان ہوتا ہے, ہم کھاتے ہیں جانور بھی کھاتا ہے, ہم پیتے ہیں جانور بھی پی لیتے ہیں, ہم بچے کر لیتے ہیں جانور بھی بچے کر لیتے ہیں, جانور بھی بل بنا لیتے ہیں, گھونسلہ بنا لیتے ہیں اور اپنا گھر بنا لیتے ہیں. اگر ہم بھی گھر بنا لیں تو کون سا کمال ہو گیا, اور اس پر خوش ہو رہے ہیں. یہ معمولی خوشیاں ہیں, بڑی خوشیوں کی ابھی ہمیں ہوا نہیں لگی ہے. ایک بڑی خوشیاں ہیں, اعلیٰ درجے کی خوشیاں ہیں, معنوی خوشیاں ہیں, اور خوشیوں کا نام ہے روحانی خوشیاں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جسم فرمایا ہے اور ہمیں روح بھی عطا فرمایا ہے, ہمیں عقل بھی عطا فرمایا ہے. اور ویسے تو عقل جانوروں کو بھی عطا ہوئی ہے, کھانے کی عقل, اڑنے کی عقل, بچوں کو پالنے کی عقل, گھونسلہ بنانے کی عقل, بل بنانے کی عقل, مال لے جانے کی عقل. لیکن اللہ کی عبادت کے لیے اتنی عقل کافی نہیں تھی, زندگی گزار لینے کے لیے اتنی عقل کافی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عقل عطا فرمائی ہے وہ اتنے اعلیٰ ہے کہ ہم صرف کھانے پینے اور ان چیزوں میں رہ کر زندگی گزار کر جائیں تو پھر آخرت کی طرف بے مقصد جائیں گے. اسی لیے ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ساری مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان کے لیے ہر طرح کے راحت اور آرام کا انتظام کیا. انسانوں کے لیے بھی اچھے اچھے انتظامات کیے, لیکن انسانوں کے ساتھ ایک مقصد لگایا اور ان کو ایک عظیم روح عطا فرمائی اور ان کو ایک عظیم دماغ عطا فرمایا اور ان کے اوپر شریعت مطہرہ کو, احکامات اسلامیہ کو فرض کیا اور ضروری قرار دیا.
اور یہ بہت بات ہے، مصیبت نہیں ہے، ہماری روح کی ضرورت، جیسے ہمارے جسم کی ضرورت کھانا اور پینا ہے، ہماری روح کی ضرورت اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے. یہ ہماری ضرورت ہے، اسی سے ہماری تندرستی ہے، اسی سے ہماری راحت ہے، اسی سے ہماری روح کی صحت ہے، اسی سے ہماری روح کی ترقی ہے، اور یہ ہماری اہم ترین ضرورت ہے. اسی ضرورت کا ہم نے، اسی ضرورت کی دعا ہر آدمی کو سکھائی گئی ہے نمازوں کے اندر. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کہتے ہیں اے اللہ تیرا سیدھا راستہ ہم کو دکھا دیجئے، اللہ تیرا راستہ، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، جنت اور رضا والا راستہ، خوشنودی والا، یہ دکھا دیجئے ہم کو. یہ بہت بڑا ہے، اور اس راستے کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی ہے، اتنی بڑی دولت ہے جسے حقیقی معنوں میں تو نعمتیں اسی کو ملی ہے. ورنہ تو جو دنیاوی نعمتیں ہیں وہ ابو جہل کو بھی ملی ہیں. جو دنیاوی نعمتیں تھیں، تاج و تخت، وہ تو فرعون کو بھی ملا تھا، اس میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن اصل نعمت جسے ہم روزانہ کئی بار کہتے ہیں اللہ آپ کی رضا کا راستہ، سیدھا راستہ، جنت والا راستہ، آپ کی رضا تک پہنچنے والا راستہ، وہ ہمیں دے دیجئے. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ شرک سے بچنے کا راستہ ہے. جیسے ہم شفاف پانی پیتے ہیں، گندا پانی نہیں پیتے، اچھے پھل کھاتے ہیں، سڑے ہوئے پھل نہیں کھاتے، اچھی غذائیں کھاتے ہیں، سڑی غذائیں نہیں کھاتے، اور حلال جانور کھاتے ہیں، کوئی حرام اور مردار نہیں کھاتے، اور اچھے صاف کپڑے پہنتے ہیں، کوئی گندے اور میلے بدبودار کپڑے نہیں پہنتے. اسی طرح ہم کو یہ سکھایا گیا ہے، اور مومن یہ دعا کرتا ہے اے اللہ جیسے تو نے ظاہری نعمتیں دیا ہے ایسی ہی تم مجھے شرک سے بچانا، تو مجھے توحید عطا فرمانا. یہ ہے ہدایت کا راستہ. مجھے کبھی شرک کا راستہ نہ دینا، مجھے توحید کا راستہ دینا، مجھے بدعت دینا، مجھے سنت والا راستہ دینا، مجھے نمازوں سے غفلت راستہ نہ دینا، مجھے نماز کا اور مسجد کا راستہ عطا فرمانا، مجھے رہنے کا راستہ نہ دینا، مجھے جو ہے پابندی کے ساتھ روزے رہنے کا راستہ دینا، مجھے بخیلی اور کنجوسی کا راستہ نہ بتانا، مجھے سخاوت اور زکوٰۃ کو نکالنے کا راستہ بتانا، اور مجھے حج سے محروم ہونے کا راستہ نہ بتانا، مجھے تو حج کو جانے کا راستہ بتانا، مجھے نیکیوں کی دعوت دینے کا راستہ بتانا، اور مجھے برائیوں سے روکنے کا جو راستہ ہے اس کا راستہ بتانا، مجھے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بتانا، مجھے ماں باپ کی فرما برداری کا راستہ بتانا، مجھے بچوں پر شفقت کا راستہ بتانا، اور مجھے بیوی بچے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ جو ہے شفقت اور مہربانی کا راستہ بتانا، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی رحم کروں ایسا مجھے راستہ بتانا، بے رحمی کا مجھے راستہ نہ بتانا. یہ بھی ہماری اہم ترین ضرورت ہے. یہ ہم روزانہ مانتے، یہ ہمیں چاہیے. اس کے بغیر ہماری آخرت کی زندگی کی سلامتی کچھ نہیں. کیونکہ ہم یہاں پر ہیں تو ہمیں چند دن رہنے کے بعد آخرت کی طرف جانا ہے، روز جزا آنا ہے. مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں روزانہ کہ اللہ تبارک و تعالی روز جزا کا مالک ہے، قیامت کا دن ہے اور روز جزا کا مالک ہے. یعنی دنیا میں کسی کو کسی کے شرک کی، بدعت کی، نماز چھوڑنے کی، روزہ چھوڑنے کی، زکوٰۃ نہ دینے کی، حج نہ کرنے کی، برائیاں کرنے کی دنیا میں سزا نہیں ملتی. اور اسی طرح نیکی کرنے کی جزا بھی دنیا میں نہیں ملتی.
बाज लोग बोलते इतना नमाज पढ़ता हूं मैं, क्या मिला मुझे। बल्कि बाज लोग तौहीद पर चलने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले आमतौर पर मुसीबत में नजर आते हैं, गरीब नजर आते हैं, बीमार नजर आते हैं। और रोजा छोड़ने वाले, नमाजें छोड़ने वाले, ज़कात ना देने वाले सेहतमंद और मालदार और उछलते कूदते नजर आते हैं। यहां वो मसला हल हो गया। मालिक यौमिद्दीन ये दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। अमल करने की जगह है, जो चाहे अमल करे। लेकिन जो बुराइयों को अमल कर रहा है, बुरे काम कर रहा है, वो अपनी किस्मत, आखिरत की किस्मत को, वो अपनी किस्मत को तबाह कर रहा है। आरजी जिंदगी तो संवर गई, लेकिन हकीकी जिंदगी तबाह हो रही है। और इस वजह से गिरफ्तार है कि क्योंकि उसकी सजा दुनिया में नहीं है। कभी कभी अल्लाह ताला बतौर इबरत के कभी दुनिया में भी हल्का मजा चखा देते हैं बाज बुराइयों का, लेकिन उलमा कहते हैं कि वो बुराई का पूरा बदला नहीं है, वो हल्का असर है। पूरा क़यामत के दिन है जो अल्लाह की नाराजगी की शक्ल में जाहिर होगा, और जहन्नम में जाहिर होगा, जो हकीकी नाकामी है। और दुनिया में बाज दफा बाज नेकियों का असर भी जाहिर होता है, लेकिन उलमा कहते हैं वो पूरा असर नहीं है, नेकियों का हल्का असर है, वरना इसका पूरा में जाहिर होगा नेकियों का, अल्लाह की रजा की शक्ल में और जन्नत की शक्ल में। ये सब चीजें हैं। एक चंद दिनों के लिए दुनिया में हम आए हैं, अल्लाह के हुक्म से आए हैं, अल्लाह के पैदा करने से आए हैं। अल्लाह ने पैदा किया क्योंकि अल्लाह ही पैदा कर सकता है, इसके अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता। कोई एक चोटी को भी पैदा नहीं कर सकता। हमारे हाथ में नहीं है पैदा होना, अल्लाह के हाथ में था, पैदा हो गए। और हमारे हाथ में भी नहीं है कि हम जब तक चाहे यहां रहें। अल्लाह का हुक्म हो जाए, जवान को भी, बच्चे को भी, बूढ़े को भी उठकर निकलना पड़ेगा। अगर हुक्म हो जाए, गिलास पानी हाथ में है, अगर हुक्म हो जाए अभी आ जाओ, वो गिलास पानी भी नहीं पी सकते तो पी भी नहीं सकेगा। हाथ में टैबलेट है, अभी आ जाओ, खा भी नहीं सकते टैबलेट तो नहीं खा सकेगा। कार में बैठा हुआ यही तुमको है तो वहीं से जाना पड़ेगा, पलटकर घर भी नहीं आ सकता। इतनी मोहताजी और मजबूरी की जिंदगी है। हम मोहताज हैं अल्लाह तबारक व तआला के, माजी में भी थे, अब भी वही खिला रहा है, उसकी हमें जरूरत है। और आखिरत में भी अल्लाह ही के हम मोहताज हैं। क़यामत के दिन वो ऐसा दिन है कि हमारी नेकियां ही हमको काम आएंगी और कोई चीज काम नहीं आएगी। वहां कोई आका नहीं है जो अपने गुलाम की मदद कर सके, कोई बाप जो अपने बच्चे की मदद कर सके, बल्कि वहां ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। ऐसा नहीं है कि अरे तू गरीब है, अरे मैं यहां मालदार हूं, मालदारी यहीं छोड़कर वो चला गया और गरीबी का ठप्पा यहीं छोड़कर वो चला गया। आका भी अपनी आकायत को दुनिया में छोड़कर चला गया और गरीब भी अपनी जो नौकर भी यहाँ की अपनी सारी चीजें छोड़कर चला गया। अब वहां है तो आमाल की बुनियाद पर है। जिसके पास आमाल है, जिसके पास तौहीद है और जिसके पास आमाल है, वो वहां आका की तरह है, वो वहां बादशाहों की तरह है, वो वहां राहतमंदों की तरह है। ये सब चीजें हैं और हमें ये चीजें इख्तियार करनी है। बुराइयों को अपने अंदर से दूर करने की हमें शदीद तरीन जरूरत है, इसकी हमें जरूरत है। अगर ये चीजें हमें हासिल नहीं है, ऐसी चीज हमें हमारे साथ जुड़ी हुई है जो आखिरत में हमको अजाब दिला सकती है, तो हमें रोने का मकाम है। फिर तो हमें तसल्ली से खाना नहीं खाना चाहिए। अगर कोई तसल्ली से खाना खा रहा है, गुनाह है, उसके आंखों से गुनाह लगा हुआ है, उसके आंखों में सख्ती है, गुनाह करता है सख्ती की वजह से, कानों में सख्ती आ गई है इसकी वजह से गुनाह करता है, जुबान में सख्ती आ गई है गुनाह करता है, दिल में सख्ती आ गई है इसीलिए हसद करता है, रियाकारी करता है, दिमाग में सख्ती आ चुकी है,
लताफत खत्म हो गई, इसीलिए गंदे गंदे ख्यालात लाता है, तो उसे चैन से खाने का हक नहीं है। अगर उसे वाकईतन वो उसे आखिरत की फिक्र है तो उसे अपनी ये चीजें दूर करने की फिक्र करना चाहिए। कैसे मुझसे आंखों से गुनाह दूर होंगे, कैसे कानों से गुनाह दूर होंगे, दिमाग से गंदे ख्यालात दूर होंगे, जुबान से गंदी जो है हरकत जो है दूर होंगी। कि तबारक व तआला जो हम मांग रहे हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, आपका वो सीधा रास्ता मुझे दिखा दीजिए, मुझे अता फरमा दीजिए, दे दीजिए। जैसे हम मांगते हैं अल्लाह बारिश दे दीजिए, ताकि हमारी जमीन जो है ताजा जिंदा हो जाए, हमारा काम बन जाए। अल्लाह ताला बरसाते हैं। तो इसी तरह हम मांगते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला को उस हिदायत का नुज़ूल हमारे कुलूब पर करना है, और वो हिदायत आंखों के जरिए अल्लाह ताला भेजेंगे। हिदायत की बारिश को कभी खोल हिदायत ले ले, कान खोल हिदायत ले ले, जुबान के जरिए से हिदायत दाखिल होने वाली है, सर के रास्ते से हिदायत दाखिल होने वाली है। और हमने वहां सख्ती पैदा कर ली है। जमीन सख्त है, अरे जमीन को हमवार कर ले, तो सब। इसी तरह अगर हम गुनाह बिठाए रखे हैं, गंदगी बिठाए रखे हैं, कानों में सख्ती जमाए रखे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत की रोशनी अंदर आना चाहेगी, दरवाजा बंद है। हिदायत की रोशनी अंदर आना चाहेगी, यहां से दरवाजा बंद है। और हिदायत की रोशनी दाखिल होना चाहती है हमारे मुंह के अंदर, दरवाजा बंद है। यहां से आना चाहती है, दरवाजा बंद है। इन सारे रास्तों से जाएगी दिल की तरफ और जमा हो जाएगी। उसके बाद इंसान पूरी तरह बुराइयों से झिझक जाएगा, पूरी तरह। थोड़ा बहुत अपना काम कर ले, जितनी जरूरत है अल्लाह ताला के कबूल के लिए थोड़े हाथ पांव मार ले। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जब उसे नवाजेंगे, एक बदल जाएगा, और फिर वो हमेशा के लिए बुराइयों के रास्ते को खैराबाद कह देगा, और हमेशा के लिए नेकियों के रास्ते को ऐसा पकड़ेगा जैसे ठंडे पकड़ लेता है प्यासा, ऐसा जैसे उम्दों को एक भूखा पकड़ लेता है, ऐसा आकर इबादत से चिमट। क्या हम नहीं चाहते कि हम बुराइयों को गंदगी की तरह छोड़ दें? हमारा काम बन जाएगा अगर हम बुराइयों को छोड़ देंगे। बुराइयों को छोड़ तो हमारा काम हम आखिरत में खुदा की नाराजगी से बच गए। क्या हमें जरूरत नहीं है कि हम तौहीद से चिमट, जिक्र से चिमट, तिलावत से चिमट, रोज़े में गले और सखावत को गले से लगा ले? अगर ऐसा करना है तो हमारे दिल की जो है काया की पलट होना चाहिए, हमारा दिल बेदार होना चाहिए, हमारा दिल जिंदा होना चाहिए, और हमारे दिल में हिदायत का नूर उतरना चाहिए, और इसका जो है इसे जिंदा, और अल्लाह तबारक व तआला ही इसे सही मानों में इसकी रूहानी हयात देने वाले हैं। जैसे जमीन को जिंदा वही करते, मुर्दे को जिंदा वही करते, मुर्दा जमीनों को जिंदा वही करते हैं, इसी तरह हमारे दिलों की मुर्दनी को भी अपने हिदायत का नूर फरमाकर और अपने हिदायत जो है अनवारात उसके अंदर दाखिल फरमाकर जो है हमें वो जिंदगी अता फरमाएंगे कि वो जिंदगी में हमें बुराइयां हमसे छूट और नेकियां हम छोड़ना चाहे तो नहीं छूट सकती। मेरे अल्फाज याद रखना, बाज लोग कहते हैं बुराइयां छोड़ना चाहते हैं, छूटती नहीं है। कैसे छूटेंगी जब दिल में वो बात नहीं है? और कहते हैं नेकी करना चाहते हैं, होता नहीं है, कैसे करेंगे? बादशाह तो अंदर दिल कमजोर है, आजा का बादशाह। अगर बादशाह तैयार हो जाए तो पूरी रियासत आएगी। इसी तरह दिल हो जाएगा, तब कहेगा कि मैं सो नहीं पाता, मुझे बिस्तर और मुसल्ले पर आ जाता हूं। जब ये कहेगा अगर मैं छोड़ना तो मैं मर जाऊंगा नमाज के बगैर, ये कहेगा। जैसे पानी तड़पेगा,
नहीं तो मर जाऊंगा, वो अगर नमाज नहीं मिली तो बस मेरा तो जीना मुश्किल है, मेरी तो जिंदगी से उसका ताल्लुक हो चुका है। इसीलिए आज की गुफ्तगू का हासिल यही है, बल्कि मैं आप हजरात से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ उभारने के लिए है, एक जहन बनाने के लिए है कि अपने कानों को कि सख्ती के अमाल से बचाइए ताकि हिदायत का नूर आए। यह बात समझाने के लिए है, वरना सिर्फ आप आकर बैठे और मैं कहूं, इससे काम नहीं बनता। और भी काम करने पड़ते हैं जिसे आहिस्ता आहिस्ता बताया जाएगा। महीने में एक मरतबा यहाँ आना होगा इंशाअल्लाह। इब्तिदा की ये बातें हैं, हमें यह बताया जाएगा, अलग अलग तौर पर बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें छोड़ना चाहिए, कान से क्या छोड़ देना चाहिए, आंखों से क्या छोड़ देना चाहिए, दिमाग से क्या छोड़ देना चाहिए, जुबान से क्या क्या निकाल देना चाहिए, और वहां क्या क्या बिठाना चाहिए, ताकि वो अल्लाह के फैसले जल्दी उतर जाएं और आदमी की जिंदगी इससे पहले कि मौत का फरिश्ता पैगाम लेकर आ जाए। जब मौत का फरिश्ता उसका पैगाम लेकर आ जाए तो फिर उसकी कदर होनी चाहिए। ऐसी हालत में हमें दुनिया से जाना चाहिए कि कब्र में जाएं तो इस्तकबाल हो, हशर में जाएं तो अंबिया सहाबा के साथ हशर हो, और जन्नत में जाएं तो इन्हीं नेक लोगों के साथ, फिर वह अल्लाह का दीदार हो। इसकी हमें तैयारी करना है। बाल्फाज दीगर, हम महीने में एक मरतबा इसलिए जमा होना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमको सेहत मिल जाएगी, पानी दम करके दे दीजिए सेहत हो जाए। हालांकि दम करके देंगे तो सेहत भी हो जाएगी, लेकिन मकसद नहीं। दुआ कर दीजिए कि दुकान चल जाए, दुआ करेंगे तो दुकान भी चल जाएगी, लेकिन हमारा यहां आने का मकसद नहीं, बल्कि हमारा यहां आने का मकसद यह है कि जो है मरने का सलीका आ जाए। जैसा अल्लाह हमको दुनिया से आता हुआ देखना चाहते हैं, वैसा आना जो है आ जाए। इसके लिए देखिए आप क्या दुआ पढ़ते हैं, देखिए पढ़िए। इसके लिए कौन सी आयतें पढ़ते हैं, पढ़िए। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं, कहिए। इसके लिए क्या चीजों से हमको रोकना चाहते हैं, रोकिए। किन चीजों में लगाना चाहते हैं, लगाइए। हमारा मकसद यहां आने का यह है कि हम बाइज्जत से दुनिया से जाएं, ऐसे इज्जत के तरीके से जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि ऐसा आकर मिलना। अल्लाह की जो मर्जी है, ऐसा मरने की तैयारी करने के लिए हम आए हैं। कोई पूछे तो बोल देना, यहां क्यों बैठ रहे हैं, जाकर क्या मिलेगा तुमको? लड्डू पेड़े मिलेंगे क्या? जीने का सामान बट रहा है क्या? नहीं, जीने का सामान नहीं बट रहा है, मरने का सामान बट रहा है। खुशकिस्मत लोग कैसा मरते हैं, दुनिया से जाते हैं। एक अल्लाह का बंदा कैसा दुनिया से जाता है, वो जाने का सलीका और तरीका सीखने के लिए हम जा रहे हैं। यह मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद भी और कोई नहीं है, आपका मकसद भी कोई और नहीं है। ना खाना मकसूद है, ना पीना मकसूद है, ना कोई दुनिया की दौलत मुझे आपको देनी है, ना तो आपसे कुछ मुझे हासिल करना है, ना मैं ऐसी चीजों से राजी होने वाला हूं। क्योंकि ये तो इतना बड़ा मजमा है भाइयों, मैं तो दो दो आदमी के मजमे में बोलता हूं। मैं तो झोपड़ी में भी बोलने तैयार हूं, मैं बस में भी तकरीर करने के लिए तैयार हूं, मैं सड़क पर भी तकरीर करने के लिए तैयार हूं, किसी दुकान वाले को भी तकरीर करने के लिए तैयार हूं, किसी घर में भी तकरीर करने के लिए तैयार हूं। जो अच्छी तरह मरना चाहता है वही मैं करना चाहता हूं। मैं माइक के बगैर भी बोलना चाहता हूं, और एक कुर्सी के बगैर भी बोल सकता हूं, कार से आकर भी बोल सकता हूं, बस से आकर भी बोल सकता हूं, पैदल आकर भी बोल सकता हूं, और जो जैसा चाहे। बस सुनने वाला तालिब चाहिए, सुनने वाला कुछ मेहनत का इरादा रखने वाला चाहिए, सुनने वाला कुछ मेहनत का जज्बा हो उसके अंदर हो, सुनने वाला अपने सीने में दिल रखता हो, सीने में पत्थर न रखता हो, सुनने वाला गुफ्तगू को अहमियत देता हो, ऐसा नहीं कि नजरअंदाज कर देता हो। अगर नजरअंदाज कर देता है तो भाइयों, मुझे तो बस खामोश रहना तो बस यूं समझिए कि मेरी खुशी का सामान है। तन्हा रहना तो यूं समझिए कि मेरी
लेकिन मैं अपनी तन्हाई को छोड़कर, अपनी जो है खामोशी को तोड़कर आपके दरमियान आया हूं, इस वजह से कि यहां कुछ नौजवान हकीकी नौजवान बन जाएंगे, दीनी नौजवान बन जाएंगे। यहां कुछ बूढ़े अपने बुढ़ापे पर रहम फरमाते हुए हकीकी मानों पर बुजुर्गी को इख्तियार करेंगे। कुछ बच्चे हकीकी मानों में दीनी बच्चे, इल्मी बच्चे, सच्चे बच्चे, बरगुजीदा बच्चे बन जाएंगे। इस महल्ले में दीन फैलेगा, बेदीनी खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए मुफ्ती साहब को, मुफ्ती गौस साहब को, मुफ्ती रफीउल्लाह साहब को, या मुझे, या कुछ आगे बढ़कर इंतजामात करने वालों को, या सुनने वालों को, अगर जरिए हमें और हमारे जरिए से महल्ले के अंदर कोई अच्छाई फैला दे, तो भाइयों इसके लिए हमें आगे आना चाहिए, इसके लिए कोशिशें करना चाहिए, अपनी तवानाइयों को लगाना चाहिए, औकात को लगाना चाहिए। यह हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आज हमारे इस जमा होने को हमारे हक में रायगा और ज़ाया न फरमाए, बल्कि नतीजा खैज़ हो और मुफीद हो, और अल्लाह की बारगाह में ये सुनना और कहना भी कबूल हो, और बेहतर नताइज हमारे सामने आए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सितम हो, दर्द हो, गम हो, या कोई हो रंजो अलम, सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम।